Today we are going to learn about DNS, how DNS works, domain name system, domain naming system. Now, there are two parts to DNS. One is as a server administrator or as a website administrator. How will you buy a domain and how will you host your website? The other part is how can your customers access DNS to access the internet? They're two different things and they are connected together. Now let's see how we buy a domain. So we can go to GoDaddy or Big Rock, whichever type of site which sells a domain name. Okay, suppose we buy nilesh.com. This domain we have purchased. Okay, once we buy it from Big Daddy or GoDaddy and we pay the money, the domain is ours. Okay. Now, normally we never buy www.nilesh.com. We buy nilesh.com. Anything before that is something which we can add. We can map a server to that. Okay, now suppose you need to host a website. Why do you buy a domain? Either to host a website or to have email IDs on the domain. Okay. Suppose you want to host a website. You have pages ready, HTML pages all are ready. So you may host it on GoDaddy also by paying some more amount and upload the pages and it will start coming there. And it's more easy that way. But as a server administrator, you should know how it works. Now, suppose I have one server in our office. This is the server where we have hosted that website, www.nilesh.com. Okay. Now this is connected to the internet by some way or the other, and it gets a public IP because people from outside should be able to access it. Correct. So we on this server we have given some public IP, suppose 121.1.1. Which the ISP has given us public IP. So we have assigned it here. Now once it is assigned, there is a client who opens a browser and tries to access www.nilesh.com. What happens? It gets nothing. Okay, how come? I already purchased nilesh.com, but there is no entry in nilesh.com for www. Okay, www is not mapped to this IP. How does that work? So in GoDaddy or Big Rock, wherever you buy the domain name, they give you DNS server also, a DNS server. This is your DNS server, which hosts these records for this domain. Okay. So now this is called as a name server, DNS record. Okay. By default, whenever you buy GoDaddy or Big Rock, they give you name server of GoDaddy and Big Rock only. Okay. तो कोई भी जब उनको पूछता है whenever somebody asks GoDaddy कि nilesh.com में www का IP क्या है, तो वो बोलेगा कि नेम सर्वर को पूछो. तो इसका नेम सर्वर अभी किधर है? तो वो है GoDaddy में. तो वहां पे जाने का अगर हम लोग फिर when you manage the DNS using GoDaddy login, you can enter that www is pointing to 121.1.1. ऐसा एंट्री किया तो इसको ये पहले पूछेगा कहाँ पे nilesh.com. nilesh.com यहाँ पे है, उसका नेम सर्वर कौन सा है, वो ये है, उसमें www कौन सा है, ये आईपी है, तो यहाँ से वो उस आईपी को टिक मारेगा, देन इट एक्सेस. सेम वे अगर कोई मेल आता है कि सपोज इट्स लाइक abc@nilesh.com, ये भी मेल आता है तो मैं एक मेल सर्वर जैसे मेल भेजता है, SMTP sends a mail. Now it wants to find out where is ABC. So it asks nilesh.com name server, भाई इसका मेल सर्वर किधर है इस डोमेन का. तो एक रिकॉर्ड होता है विच इज कॉल्ड एज MX रिकॉर्ड, मेल एक्सचेंजर रिकॉर्ड. उसमें हम लोग उसमें मेल सर्वर का आईपी रहता है आपका. तो यू माइट बी होस्टिंग वन मोर मेल सर्वर हियर, उसका आईपी 121.1.1.2 होगा. तो यहाँ पे वो हम लोग मैपिंग कर देंगे. ऑटोमेटिक नहीं, मैन्युअली, यू हैव टू डू इट मैन्युअली.
No, we have to go into GoDaddy control panel, access DNS. In that DNS, you can enter these IDs. जब आपका मेल गूगल पे रहता है, तब भी आपको गूगल के MX रिकॉर्ड ऐड करने पड़ते हैं, मैन्युअली करना पड़ता है, ऑटोमेटिक नहीं होता है। सम आजकल नए जो आए हैं GoDaddy में भी और बिगरॉक में भी, अगर आप बोलोगे कि मेरा मेल सर्वर गूगल पे है, तो वो ऑटोमेटिकली ऐड कर लेता है। बट दिस इज व्हाट हैपेंस, यू शुड नो। तो व्हेनेवर देयर इज अ abc@nds.com को मेल आएगा, वो पहले चेक करेगा MX रिकॉर्ड कौन सा है, तो बोलेगा ये है, तो मेल एक्सचेंजर इसका ये है। यहाँ पे ABC का एक मेल बॉक्स होगा, तो वो मेल फिर यहाँ पे आएगा। Right? That's how it gets resolved. Now there is a client. Okay. Now client को कैसे मालूम पड़ता है कि कहाँ पे पूछना है, ये प्रॉब्लम रहता है। Okay. The client is trying to access www.nilesh.com. ठीक है। क्लाइंट क्या करता है, उसके हम लोग एंट्री में जो IP एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे और DNS सर्वर, ये 4 चीजें ऐड करते हैं, बरोबर। तो DNS सर्वर नॉर्मली इज लोकल, यहाँ पे एक लोकल सर्वर होगा एक्टिव डायरेक्टरी का, उसके ऊपर DNS होगा। दिस इज अ DNS क्लाइंट एक्चुअली, DNS सर्वर है जो यूजर क्लाइंट रहता है, ये इसको पूछता है भाई मेरे को IP एड्रेस बताओ। वो क्या करता है, पहले लोकल मेमोरी में चेक करता है कि मेरे पास इसका कैश में मेमोरी में है क्या, नहीं है। ओके, so there are two ways in which it can to look up. First way is we can configure a forwarder here. DNS सेटिंग्स में, DNS सर्वर के सेटिंग में जाओगे तो एक फॉरवर्डर ऑप्शन रहता है, तो फॉरवर्डर में आप ISP का एक DNS सर्वर दे सकते हो, तो वो डायरेक्ट उसको पूछेगा। या हम लोग नॉर्मली 8.8.8.8 डालते हैं, इधर गूगल DNS सर्वर, या हम लोग अगर डाल देते हैं तो वो वहां पे पूछेगा, वो खुद नहीं ढूंढता बैठेगा। दिस इज द फर्स्ट वे। सेकेंड वे इज टू फाइंड इट ऑन देयर ओन। अभी उसको ढूंढना है पूरा कि nilesh.com में www का मुझे IP चाहिए। तो सेकेंड वे इज व्हाट इट डज इज व्हेनेवर यू बाय दिस डोमेन, आपका नेम सर्वर का एंट्री हैपेंस इन समथिंग कॉल्ड एज, अभी हमने क्या खरीदा, .com खरीदा, तो .com का एक सर्वर रहता है, देयर मल्टीपल सर्वर्स, मेनी सर्वर्स ओवर द इंटरनेट। तो .com के अंदर nilesh.com की एंट्री हो जाती है, राइट। उसमें nilesh.com की एंट्री हो जाती है। उसमें क्या होता है, nilesh.com का नेम सर्वर कौन सा है, तो GoDaddy में, whatever IP of that GoDaddy. This is called a root server. If you buy .org का अलग रूट सर्वर होगा, .in का अलग रूट सर्वर होगा। ओके, जैसे ही आप डोमेन नेम खरीदते हो, nilesh.in ऐसे खरीदोगे, तो .in सर्वर में आपके nilesh.in के सर्वर की एंट्री हो जाएगी, नेम सर्वर की एंट्री। हर DNS सर्वर में there is a file called root.hints. root.hints, HINTS। इसके अंदर रूट सर्वर के एड्रेसेस रहते हैं, रूट सर्वर के एड्रेसेस रहते हैं। ओके, जब उसमें फॉरवर्डर कॉन्फ़िगर नहीं है, उस समय वो रूट को पूछता है। ओके, नाउ इन दिस केस इट्स आस्किंग फॉर www.nilesh.com, तो बोलेगा पहले .com को पूछेंगे, तो उसका रिक्वेस्ट जाएगा .com को, भाई nilesh.com का नेम सर्वर कौन सा है, तो बोलेगा ये है, इसका भी कोई IP होगा, फॉर 1.1.1.1 जस्ट फॉर एग्जांपल। तो फिर इधर आएगा रिक्वेस्ट, ये फिर 1.1.1 को पूछेगा, भाई www का IP कौन सा है, तो उसको रिप्लाई करेगा ये है। फिर वो यहाँ से इसको बोलने, फिर वो क्लाइंट को बोलेगा कि www.nilesh.com का IP एड्रेस ये है, फिर वो यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट करेगा। हाँ, तो दिस इज द प्रोसेस। जैसे हम डालते हैं
तो दिस हैपेंस विद इन सेकंड्स ओनली। तो गूगल के फिर इंडिया में भी कुछ डीएनएस सर्वर्स होंगे सर? नहीं, सी डीएनएस सर्वर अलग बात है, वेब सर्वर अलग बात है। डीएनएस सर्वर जो है वो सिर्फ रिजॉल्व करके देता है, आपको आईपी एड्रेस ला के देता है। google.com का वेब सर्वर अलग है, जो आप एक्सेस करते हो ना वो अलग है। इसका काम है सिर्फ आपको एड्रेस पता करके देना कि भाई ये एड्रेस है, यहाँ पे आप पैकेट भेजो, तो वहां पे आप फिर पैकेट भेजोगे तो वहां से मिल जाएगा, बस दैट्स इट, नथिंग एल्स। यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजो तो पैकेट आ जाएगा, दैट्स इट। सपोज आप यहाँ पे टाइप करते हो कि www.google.com, तो कहाँ पे जाएगा पहले रिक्वेस्ट? कौन से डीएनएस पे जाएगा? कौन से डीएनएस पे जाएगा? करेक्ट। तो अभी ये क्लाइंट के ऊपर मैंने ये टाइप किया ब्राउजर में, ओके। नाउ हाउ विल दिस क्लाइंट गेट द आईपी एड्रेस ऑफ www.google.com? बताइए कौन से रिजॉल्वर पे जाएगा? कौन से डीएनएस पे जाएगा? लोकल की इंटरनेट पे क्या? ओके परफेक्ट। तो उसके मशीन पे जो कॉन्फ़िगर है उसके पास वो पहले जाएगा, बराबर। वो क्या करेगा? करेक्ट, वेरी नाइस, बराबर। एक्सेस होगा नहीं तो फिर फॉरवर्डर के पास फॉरवर्ड करेगा। वेरी नाइस। फॉरवर्डर क्या करता है? फॉरवर्डर विल सेंड दिस रिक्वेस्ट टू, और हाँ, जो ये करने वाला था ना खुद होके, वो फॉरवर्डर करता है, उसका भी काम यही है। उसमें सिर्फ हम लोग अपना काम कम कर रहे हैं फॉरवर्डर को भेज के, फॉरवर्डर भी यही करता है एक्चुअली। ठीक है, अभी डीएनएस का ये हो गया, यहाँ पे क्या है? फिर नेक्स्ट फॉरवर्डर will send this request to root server, then correct, very nice. And after that, the root server will come up with a page with the address. Correct. It will root server will give the address of name server for that domain. Then this DNS server will ask that name server for that record. Yes. This record is called a record, www, इसको एड्रेस रिकॉर्ड बोलते हैं, और ये mx रिकॉर्ड है। सॉरी, mx नहीं डालते यहाँ पे डालते हैं सर्वर का नाम वगैरह डालते हैं या डोमेन का नाम डालते हैं els.com, और फिर mx रिकॉर्ड ऐड करते हैं उसमें। ठीक है, अंडरस्टूड? यस। So when you buy a domain क्या होता है, और when you hit a domain और request a URL और resolve, उस समय क्या होता है? ये दोनों चीजें आना चाहिए। सिर्फ ये आएगा तो भी फायदा नहीं है, क्योंकि आपको समझेगा ही नहीं कि वहाँ पे एनएस रिकॉर्ड अभी ऐसा भी हो सकता है कि यू में से कि मैं गोडैडी के पास क्यों रखूँ मेरे सर्वर डीएनएस के, मैं अपने पास रखता हूँ ना, तो देन यू कैन, बिकॉज यू हैव फुल कंट्रोल, यू विल हैव फुल कंट्रोल ऑन योर नेम सर्वर्स, है। तो इसलिए लोग क्या करते हैं बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, वो अपना खुद का डीएनएस सर्वर डालते हैं और उसको यहाँ पे सपोज 121.1.1.3 ऐसा आईपी दिया है उसको, पब्लिक आईपी। तो इसमें जाते हैं गोडैडी में, बोलते हैं मेरा नेम सर्वर का आईपी ये नहीं है, मेरा नेम सर्वर का आईपी ये है। तो डायरेक्ट सब लोग इसको पूछेंगे, तुम्हारा रिकॉर्ड ऐड बताओ हमको, इसको नहीं पूछेंगे। इसको फिर इसके पास जाएंगे, ये बोलेगा मेरे पास नहीं है नेम सर्वर, इसलिए तो ये वो यहाँ पे एक्चुअली आपका .com में एंट्री इसका हो जाता है, तो वो डायरेक्ट आपको पूछेगा, इधर नहीं पूछेगा। करेक्ट, है ना, बिकॉज देन यू हैव फुल कंट्रोल। Like in one of the organizations where I worked, we had our own DNS server. Why? Because we wanted DNS server record expiry time to be 5 minutes. हमको ऐसा चाहिए था कि कल मैंने चेंज कर दिया आईपी, तो 5 मिनट में सब कस्टमर्स को आईपी नया आईपी मिलना चाहिए, वो कैश में नहीं रहना चाहिए उनका टाइम। यहाँ पे अगर रखते हैं तो इनका डिफॉल्ट रहता है कुछ टाइमिंग, समटाइम्स इट्स इवन 72 आवर्स। हाँ, तो नहीं, बट दे हैव दैट सेटिंग ऑन दैट जोन, उसको जोन बोलते हैं, डीएनएस जोन। जोन फाइल जो रहता है आपके डोमेन का, उसको एक फिक्स टाइम रहता है, कोई 24 आवर्स रखता है, कोई 3 आवर्स रखता है, डिपेंड्स ऑन दैट। जितना आप कम टाइम रखोगे उतना ट्रैफिक बढ़ेगा, बट उतने टाइम में जल्दी आप सर्वर शिफ्ट कर सकते हो आईपी एड्रेस, ऐसा भी होता है। जैसे मोस्टली जब फॉल्ट वॉल्ट हो गया, कुछ सर्वर डाउन हो गया, तो आपको दूसरा अप करना है, दूसरा आईपी पे करना है, वेबसाइट दूसरा आईपी पे चालू करनी है, तो टाइम कम होगा, 5 मिनट में स्विच हो जाएगा।